gospel is not just opened up in the New Testament. और सुसमाचार नए नियम में आरंभ नहीं हुआ। The gospel started in Genesis chapter number 3. और गॉस्पेल जो सुसमाचार है वो तीसरे अध्याय जेनेसिस में आरंभ हो चुकी है। So from Genesis 3, the devil knows there is going to be the seed of the woman who's going to crush my head. और शैतान को पता था कि उत्पत्ति में जो बात बताई गई है कि आने वाले दिन में मेरे सिर को कुचलने वाला है। So throughout history, और इस जब इतिहास को हम देखते जाते हैं, you will notice that the devil used people to destroy specifically males in the story of Moses. और जब भी आप मूसा की कहानी को सुनते हैं, देखते हैं, The devil was after Moses. और शैतान जो है मूसा के पीछे था। You move to the New Testament, और यदि हम नए नियम में जाते हैं, you find Herod very upset now. और वहां के जो हेरोद जो राजा है वो भी बहुत दुख थे। The same spirit is transferred and और वही आत्मा उनके भी मन में आया कि वो जितने भी जो बच्चे हैं 2 साल के नीचे उनको खत्म कर डाले। so the devil doesn't know who's going to come, इसलिए शैतान जानता था कि कौन आने वाला है। but every male that comes, he is looking at him whether he's the one who's going to crush my head. और वो जानता था, इसलिए जितने भी मेल पुरुष जो होते थे उनको मारना चाहता था। Jesus comes यीशु मसीह आते हैं as the seed of the woman. और उस महिला के वंश के तरह। You'll find it in the book of Galatians chapter 4 verse number 4. गलातियों 4 में आप इसको देखने पाएंगे। The Bible, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। right time, सही समय God sent his son. परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। Why did God have to wait 2000 years? और क्यों परमेश्वर को 2 साल इंतजार करना पड़ा? The Bible says in the right time. Yeah. So when Jesus came on the scene, जब यीशु मसीह आए, he came and destroyed the serpent. और यीशु मसीह इसलिए आया कि वह शैतान को नाश कर सके। He crushed the head of the serpent. और वे सांप की जो सिर है उसको क्रश करने के द्वारा And in the process, his heel was bruised. और उसकी जो उस प्रक्रिया में उसका भी जो एड़ी है उसको भी डसा गया। That's why the devil इसलिए शैतान has got what is called a PhD. और इसीलिए शैतान ने PhD, उसमें जो डॉक्टरेट की जो डिग्री है उसको what is- डॉक्टरेट क्या की डिग्री है वो? PhD. PhD की। What is the meaning of PhD? PhD का मतलब क्या है? Permanent head damage. Now, the devil has got a PhD, a permanent head damage. One Jesus was enough to destroy Satan and his kingdom. एक यीशु मसीह इनफ है, काफी है शैतान के पूरे राज्य को, साम्राज्य को खत्म He करने। rose from the dead और वो मृत्यु से उठे and gave every one of us power to become the sons of God. और उसने हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। Sons means sonship. It means that relationship with our Father. और sonship का जो मतलब है वो हमारे पिता से कनेक्ट करते हैं, इसलिए। Your father is God. You know that's what it means. The adoption. और यदि आप पुत्र हैं तो आपको पता चलेगा कि वो जो आपके जो फादर हैं उसने आपको वो काम दिया है। Hallelujah. So now the devil was looking for that one male, the seed who's going to destroy his head. और शैतान उस एक वंश को देख रहा था जो उसके सिर को कुचलने वाला था। Now what does Jesus do? और यीशु ने क्या किया? He makes all of you sons. और इसलिए उसने सभी को पुत्र बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। Now the devil doesn't know what to do. अब शैतान को समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है। One son headache, एक पुत्र का हेडेक था उनको। one son PhD. एक जो सन थे, एक जो पुत्र है वो PhD थे। These people are running around like sons. Everybody adopted sons. My time has come. और शैतान को समझ आ गया कि अब जितने भी पुत्र हैं वो अब मेरा समय आ गया है नाश होने का। Yeah. So we are called to destroy the kingdom. Even that little bit we are called to destroy. और इसीलिए हम बुलाए गए हैं कि हम उस शैतान के राज्य को नाश कर सकें। Amen. आमीन। So the proto-evangelion is still continuing today. और इसीलिए जो शब्द प्रोटो इवांजेलियन है वो अभी भी लगातार चलते जा रही है। Now I'm going to run through 8 scriptures very very quickly और हम 8 अलग वचनों के देखेंगे to show you the process and the progress of this proto-evangelion. इस प्रोटो इवांजेलियन का जो प्रोग्रेस है या फिर उसका कार्य है कैसे आगे बढ़ता है, हम उसको इस 8 वचन के माध्यम से देखने पाएंगे। Number 1, the book of Micah, chapter number 5 and verse number 2. हे बेथलेहम एफ्रात, यदि तू ऐसा छोटा सा है
कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ मुझसे मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। You must know that the devil knows the Bible. और आप जानते हैं, आपको जानना चाहिए कि शैतान जो है बाइबल को जानता है। The Messiah will be born in Bethlehem. और मसीहा जो है बैतलहम में उत्पन्न पैदा होगा। Now his eyes are on Bethlehem now. और उसकी जो आंखें हैं बैतलहम के ऊपर लगी हुई Because हैं, he knows the scriptures. क्योंकि वो वचन को जानते हैं। So this prophecy was written maybe hundreds of years even before Jesus was born. और यह जो प्रोफेसी की जो बातें हैं वो यीशु मसीह के पैदा होने से हजारों साल पहले लिखी गई थी। Now using the law of probability, I have a coin, I toss Yes. the possibility of getting heads versus the possibility of getting a tails. यस, एक सिक्का को जैसे उछालते हैं तो हम उसे देखते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, वो पॉसिबिलिटी वहां पे 50%, 50%. 50% वहां पे दिखे I जाता was है। traveling to Bangalore from Chennai on a train to do some ministry work. और बेंगलोर से जब वो चेन्नई की ओर यात्रा कर रहे थे, And next to me there was somebody sitting there. और मेरे साइड में एक व्यक्ति बैठे हुए थे, I mean, we just said hello and all that. और वो अच्छे बैठे हुए थे, And I continued to put my headphones on. I was living my own life. और मैं हेडफोन को अपने लेकर अपने जीवन को जी रहा था वहां पे। I returned back after a few days. और कुछ दिन बाद मैं वहां से रिटर्न हुआ And the वापस। same man was sitting next to me on my return journey. ओके, वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति सेम व्यक्ति फिर से उसी जगह में बैठे हुए थे। That's a rare probability. और वो एक संभावना होती है, कभी हो सकता है फिर नहीं हो How do you सकता। expect the same man to be here and next to me in the same train on my return journey? अब कैसा ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि वही व्यक्ति सेम जर्नी में रिटर्न में मेरे साथ बाजू में बैठा हुआ मिलेगा। So you must look at this through that lens of the law of probability. और इसको हम इस वर्ड प्रोबेबिलिटी की जो वर्ड है, संभावना की जो वर्ड है, उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। So what is the prophecy? और प्रोफेसी भविष्यवाणी क्या The है? Messiah will be born in Bethlehem. मसीहा जो है बैतलहम में पैदा होंगे। That's it. The devil now knows. Instead of going everywhere, wasting time, straight to Bethlehem. और शैतान जो है वो सिर्फ बैतलहम की ओर अपनी नजर को गड़ा के रखा था, That's why he instigated Herod. और इसीलिए वो हेरोद को जो है पीछे पड़ा हुआ था। Okay, so that's a very rare possibility. और यह कभी असंभावनी वाली जो बातें हैं कभी होती है, That a savior of the world will be born in such a small town as in Bethlehem. दुनिया का उद्धारकर्ता उस छोटे से गांव में पैदा होने वाला है। Malachi chapter 3 verse 1. A messenger will prepare the way for the Messiah. और एक रास्ता को बनाने वाला मसाया के लिए रास्ता को तैयार करेगा। Okay, that means somebody will announce the great one is coming after me. और वो अनाउंस करेंगे कि मेरे बाद एक बहुत बड़े व्यक्ति आने वाले हैं। And do you know who that person is? और क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति कौन था? John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। फुलफिल हो गया वो। Prophecy number 3. और तीसरी जो प्रोफेसी है, The book of Zechariah, जकरिया की पुस्तक chapter number 9 और उसकी 9वीं अध्याय and verse number 9. और उसका 9 वचन। Lowly and riding on a donkey. वह दीन गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। Now this Messiah we are talking about, और हम इस मसाया के बारे में बात कर रहे who's हैं, going to crush the head of the serpent, और जो सर्प के हेड को कुचलेगा, is going to enter into Jerusalem और as a वो- king riding on a colt of a donkey. और वो यीशु मसीह जो मसाया है वो गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करेगा। What's the first prophecy? पहली प्रोफेसी क्या थी? The Messiah will be born in मसीहा जो है पैदा होंगे बैतलहम में, first prophecy. Second prophecy. The messenger will prepare a way for him. और एक रास्ता बनाने वाला उनके The लिए रास्ता third one बनाने is this Messiah will enter into Jerusalem. और तीसरी जो बात है कि वो यरूशलेम में प्रवेश So करेंगे। all these things has to align so properly and fulfill in one man. और इसीलिए इन सारी भविष्यवाणी को एक साथ एक समय में इसको फुलफिल होना है। Imagine hundreds of years ago, लेकिन अब सोचिए हजारों साल पहले, proto-evangelion thousands of years ago, और जो शब्द प्रोटो इवेंजलियन जो 1000 साल पहले, that it will all be fulfilled in the life of one man. और वो सारी बातें सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा पूर्ण होगी। Number 4, चौथी बात, the book of Zechariah, जकरिया की पुस्तक chapter number 13 13 अध्याय and verse number 6. और वचन 6। It simply says, this Messiah will be betrayed by a friend
and he will suffer wounds in his hands. You know who this is talking about? और क्या आप जानते हो किसके बारे में बात कर रहे हैं? यीशु को कौन धोखा देगा? Yeah, Judas of Iscariot who betrayed Jesus with a kiss. यहूदा इस्करियोती जिन्होंने यीशु को उस चुम्बन के द्वारा उसे धोखा And the दिया। Bible says as a result of this betrayal, और उसका रिजल्ट जो हुआ, he will be crucified on a cross and he will have holes or wounds in his hand. और उसके जरिए के उसके माध्यम के द्वारा वो क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। नीले कीटे हैं उसके हाथों पर खोदी जाएगी। The next prophecy, और अगली जो भविष्यवाणी है, we have the fifth one. और हम पांचवी बात को देख रहे The book हैं। of Zechariah chapter 11 verse number 12. मेरा जो मूल्य है उसे दे दो। And they gave me 30 pieces of silver. और उन्होंने मुझे 30 सिक्के दिए। Judas of Iscariot, यहूदा इस्करियोती के बारे में बात कर रहे he हैं। received 30 pieces of silver. और उन्होंने 30 चांदी के सिक्के प्राप्त किए। When was it prophesied? और कब यह भविष्यवाणी की गई थी? Hundreds of years before it can happen. हजारों साल पहले जो इसे होनी थी। The detail of even the 30 pieces of silver is so accurately written in scripture hundreds of years before it can be fulfilled. और जो 30 चांदी के जो सिक्के हैं वो पूर्ण रीति से डिटेल में बाइबल में लिखी गई है। Zechariah 11 and verse 13. Next और one. जकरिया की पुस्तक 11 और उसका 13 वचन। The Bible says, I threw the silver back to them. और उन्हें फेंक दूंगा। They bought a price, a potter's field with that money. और उन्होंने उस चांदी के सिक्के से कुछ जमीन को खरीदा। They bought a field to bury foreigners. और उन्होंने एक फील्ड, एक जमीन को खरीदा। The seventh one. और सातवीं जो बात है, The book of Isaiah 53 verse number 7. यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय और उसके 7वें वचन में। In this excruciating torture and him being beaten, और यीशु मसीह जो बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किए गए थे, pulled out his beard that he was beyond recognition. और बहुत ही दुख उन्होंने वहां पे सहा। And not only that, they beat him up so badly, he was a piece, he was just a body of mangled flesh. और उनको बहुत ही ज्यादा पीटा गया था। And the Bible says he will not open his mouth. और बाइबल कहती है कि उन्होंने अपने मुंह को नहीं खोला। It happened as it was prophesied. और जैसा भविष्यवाणी की गई थी वैसा ही वहां हुआ। The eighth one and the last one, of course, और 8वीं बात जो लास्ट बात है, Psalm 22 verse number 16. भजन संहिता की पुस्तक 21 अध्याय Verse 16. और 16 वचन। Called the Messianic Psalm. और यह जो साम है, जो भजन संहिता है, मसाहिक साम के रूप में कहलाती है। The last line says, they have pierced my hands and my feet. Verse 17 says, I can count all my bones. They look and stare at me. और बाइबल 17 कहती है, वचन कहती है कि मैं उन सारी हड्डियों को गिन सकता हूँ। Verse 18 says, they divided my garments among them, and for my clothing they cast lots. और 18वीं जो वचन कहती कि वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। This was also prophesied hundreds of years before it can actually happen. और यह भी प्रोफेसी जो हुई थी वो फुलफिल होती है, क्योंकि यह प्रोफेसी जो है हजारों साल पहले हुई थी। Now, can you see how scripture is unfolding? और हम देख सकते हैं कि जो पवित्र शास्त्र है किस हिसाब से वो बनाया गया है। The book of Genesis chapter 3, the proto-evangelion. और उत्पत्ति की पुस्तक 3:15 जहाँ पे हम उस प्रोटो इवांजेलियन के बारे में Throughout सीखते हैं। scripture, a new door opens. और वचन को जब हम जाते हुए तो नई नई दरवाजे खुलते जाते हैं। And can all these things be fulfilled in one man? और ये सारी बातें सिर्फ एक व्यक्ति पर ही पूर्ण होती है। What are the 8 things quickly? और वो 8 बातें क्या है, हम जल्दी से देख लेंगे। The Messiah will be born in Bethlehem. मसाया जो है बैतलहम में पैदा होंगे। And this particular individual और यह पर्टिकुलर जो व्यक्ति है, ये मनुष्य है, will have a messenger to prepare his way. और उसका एक मनुष्य होगा जो उसके लिए रास्ता तैयार करेगा। And this Messiah will enter Jerusalem and not come back, but riding on the colt of a donkey, being declared as a king. और वो व्यक्ति जो है उस गधे पर चढ़कर उस यरूशलेम में जाएगा और वापस वहां से नहीं आएगा। And he will have a friend, and this friend is going to betray him with a kiss. और उसका एक दोस्त होगा जो उन्हें एक किस के जरिए के माध्यम से उसे धोखा देगा। And be traded for 30 pieces of silver. और सिर्फ 30 चांदी के सिक्के के द्वारा उसे धोखा देगा। And when he feels remorse and he gives this money back, actually throws it back to the Pharisees. और जब वो पश्चाताप करके जब उस 30 सिक्के को फेंकता है, They will take this money and buy a plot
of land to bury foreigners. और वो उसी पैसे से उसके लिए एक जगह को खरीदेंगे जिसमें उसको वो दफना सके। He'll be beaten, battered, and bruised, but he'll not open his mouth. और उन्होंने यीशु ने दुख उठाया, दुख सहा, लेकिन अपने मुंह को उन्होंने नहीं खोला। And on the cross of Calvary, और उस कैलवरी के क्रॉस पर the Bible says that his hands and his legs will be pierced, और बाइबल कहती है कि उसके हाथ और पैर जो है उसमें कीले ठोके and जाएंगे his bones will be exposed, और उनकी जितने जो हड्डियां हैं वो दिखेंगी and they will also cast lots for his clothing. और वे उसके कपड़े के लिए कुछ नोट्स को डालेंगे। When the psalmist wrote in Psalm chapter 22 और साम भजनकार के लिखने वाला लिखता है भजनकार में 22 में about this suffering, और इस दुख के बारे में वहां पे वो लिखते he हैं never even knew that there was a cross. और उनको ये नहीं पता था, कभी नहीं पता था कि आने वाले दिनों में वो क्रूस है वहां पे है। It was not even existing at that point of time. और उस समय वो जो क्रॉस है, वो क्रूस है, वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, वहां पे उन लोग नहीं जानते उस क्रॉस के बारे में। All this happened in the life of one man. और यह सभी सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन में होता है। So this is not a chance. और यह किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं है, This is not some kind of happening somewhere by fluke. और यह ऐसा नहीं है कि ऐसा ही ये सारी घटनाएं घट गई। This is the deliberate plan of God. और यह संपूर्ण रीति से परमेश्वर की योजना थी। That's why I'm here to tell you और इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ कि मैं आपको बता सकूं that book you're holding और जो बाइबल जो आप पकड़े हुए हैं is the greatest GPS you can ever find on earth. और ये बहुत ही बड़ा जीपीएस जिसके माध्यम से हम सर्च करते हैं, वो बहुत ही बड़ा जीपीएस का एक ट्रैक है यहाँ पे। God positioning system. और यह परमेश्वर की जो सिस्टम है वो उसको दिखाती है। He can plan it so well and everything which was prophesied came to pass. और उन्होंने इस तरीके से उसको प्लान किया कि जितनी घटनाएं और जितनी बातें कही गई थी वो एक के बाद एक होती गई। Because my belief system is not just I believe. और मेरी जो विश्वास की प्रतिक्रिया कि जैसा मैं विश्वास करता हूँ वैसा है। No. Mine is a solid belief based also on the law of probability. और मेरा जो विश्वास है वो प्रोबेबिलिटी जो संभावना है उस पर भी विश्वास And है। tell me, show me anybody in history who could prophesy this so in detail and every single thing comes to pass. क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी जो प्रोफेसी जो कि इन्होंने हजारों साल पहले की होगी और एक के बाद एक सही समय में वो सारी चीजें पूरी हुई होंगी। You recognize the hand of God in this amazing draft of the story of the cross. और हम परमेश्वर के उस अद्भुत रचना को हम इस माध्यम से, इस भविष्यवाणी के माध्यम से देखने को पाते हैं। So my faith is solid. इसलिए मेरा विश्वास मजबूत है It's not going to shake और ये हिलने वाला नहीं है, because history has proven the truth of Jesus Christ. क्योंकि इतिहास जो है यीशु मसीह के बारे में ऑलरेडी बता चुकी है। Science has proved the existence of Jesus Christ. विज्ञान जो है यीशु मसीह के जो अस्तित्व के बारे में बता चुकी है। The testimonies of people who have accepted Christ, they have given their testimony that proves that Jesus Christ is Lord. और लोगों ने अपने गवाही के माध्यम से बताया है कि यीशु मसीह उस समय में थे। I think the Lord has done everything in His power to prove that He is the Lord. और इसके बाद और कोई भी बात ऐसा नहीं है कि वो और करे जिस पर आप विश्वास करेंगे। There's a challenge right now that we are facing. और यही जो चैलेंज चुनौतियां जो हैं हम फेस कर रहे हैं। It's about your trust and faith in a God who will never fail. और यह आपका भरोसा है परमेश्वर पर जो कभी फेल नहीं होगा। I will tell you in an easy way. और मैं आपको साधारण से तरीके से बताना चाहूंगा। Suppose you take $1. $1. यदि आप अमेरिकी जो करेंसी है $1 आप उसको लेते हैं And then you put an X mark on the dollar. और उस डॉलर के ऊपर अभी एक्स का जो चिन्ह को आप मार देते हैं, वहां पे चिन्ह लगा देते हैं। All right. And number 2, और दूसरी बात, the state of Texas in the USA और यूएसए जो वहां की जो टेक्सास है is a big huge state. और Very वो big. बहुत ही बड़ा राज्य है। जो टेक्सास है वो बहुत ही बड़ा अमेरिका का राज्य है। And so you for a foot high you load the whole state of Texas with $1 bills. और $1 बिल में जो है बहुत सारी चीजों को वहां पे खरीद सकते हैं। All right. Then you find a blind man.
और एक अंधा व्यक्ति को पाते हैं and tell him to drop this $1 anywhere in the state of Texas. और उनको बोलिए कि कहीं भी उस $1 को वो उड़ा दे या फिर रख दे। And then you take the blind man to anywhere he wants to go और आप उस अंधे व्यक्ति को कहीं भी ले जाएं जहां वो जाना चाहता है and tell him once you get out right now, और जैसे आप वहां से उतर जाएंगे pick up, the first pick should be that same $1 with an X mark. और आप उनको बोल सकते हैं कि जो डॉलर उन्होंने गिराया था वही डॉलर वहां पे मिले उन्हें। That is how difficult it is for all these prophecies to line up in the life of one man. और इसी तरह जैसे वो अंधा व्यक्ति उस रुपए को नहीं पा सकता, उसी रीति से कठिन हमारे लिए है उस प्रोफेसी को But I विश्वास want to करना। announce to you, और मैं आपको उस बात को बताना चाहूंगा, it came to pass. और यह पूरा हुआ, It came to pass. और यह जो वाणी है वो पूरा हुआ।